Hello everyone, welcome back to Kalamais Academy, and we are looking at the current age program in which we are looking at the most probable topics for the UPSC Prelims 2025. So in this session we are going to discuss about the recent addition in the World Heritage Sites, and that site is from the India. So the site is Moidans. That is the Moidam. It is a burial site in from the Assam. असम के अंदर जो अहोम डायनेस्टी होती थी, तो उस अहोम डायनेस्टी के अंदर ये प्रथा था कि जब कोई राजा रानी मर जाते थे तो उनके लिए एक ब्यूरियल साइट्स बनाया जाता था और उसको कहा जाता था मोइदम. तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है इन आवर कल्चर, इन आवर हिस्ट्री, and therefore it has now been included under the UNESCO's World Heritage Sites. Right? UNESCO, you know that UNESCO, India became the part of the UNESCO in 1946 itself, and this World Heritage Sites, it is being provided by the World Heritage Committee. Right? So it is being provided by what? It is provided by the World Heritage Committee. This World Heritage Committee was set up in 1972, and this year there was the 46th sitting of the World Heritage Committee. That is the 46th sessions of the World Heritage Committee, and most importantly this session was held in India, in New Delhi. So this becomes very important. This year prelims, it becomes very important. All the UNESCO site. अब देखिए, इसको ध्यान में रखिएगा कि इस तरह के जो फैक्ट्स होते हैं, इस तरह का जो इवेंट्स होता है, वो फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है जब भी कोई चीज फर्स्ट हो रहा होता है. बिकॉज दिस हैज बीन द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज होस्टेड द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी. पहली बार इंडिया में हुआ है. 1946 से इंडिया यूनेस्को का पार्ट है. 1972 से वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी के सेशंस हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में ये पहली बार हुआ है. एंड इस सेशन के अंदर ये मोइदम को दिया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर, उसको इंक्लूड किया गया. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट? सो अगर आप देखेंगे तो लास्ट डिकेड्स हैव बीन ए सिग्निफिकेंट ईयर्स फॉर द इंडिया regarding the World Heritage Sites, because पिछले एक दशक में ही 13 World Heritage Sites have been included from India itself. Right? Then India has 43 World Heritage Sites currently. तो ये 43rd वाला जो है ये मौदम है, जिसके बारे में अभी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. So this is the 43rd World Heritage Sites. इसके अलावा बहुत ही तरह के World Heritage Sites ऑलरेडी इंडिया के अंदर हैं, एंड देयर आर आउट ऑफ दिस 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, देयर आर 43 कल्चरल हेरिटेज साइट्स, देन देयर आर 7 नेचुरल हेरिटेज साइट्स, एंड देयर इज 1 कंचनजंगा. दैट इज बोथ कल्चरल एज वेल एज द नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. सो इट इज अ मिक्स्ड टाइप. So in total, that is 35 plus 7 plus 1, that is a 43 world heritage sites is there now. And regarding the number of sites, regarding the total number of the sites, India is at the 6th position. India is at the 6th position regarding the total number of the World Heritage Sites in the world. So the Italy is at the first position. Italy at the first position. Then China is there. China is at the second position. Then Germany is there. So Germany is at the 3rd position. Similarly, India is at the 6th position globally, because India is having the 43 World Heritage Sites. Italy has around 60 World Heritage Sites. Right? So I hope that you have understood this. So this is मोइदम. मोइदम जो टॉप व्यू अगर आप देखेंगे मोइदम का, तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है. आप देखेंगे कि जगह जगह पे ये बनाया हुआ है ना. तो कुछ लैंड एलोकेटेड होते हैं जहां पर मोइदम्स बनाया जाता है. दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देयर. दैट इज द मोइदम्स इज देयर. राइट? सो मोइदम जो बनाया जाता है वो बनाया जाता था अहोम डायनेस्टी के द्वारा.
Now, so first understand who are these Ahom dynasty, from where they came, right? So Ahom dynasty, if you see, then they ruled in the northeastern side of the India, that is असम वाले रीजन में, अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन, ये नागालैंड वाला रीजन, तो इस सारे रीजन्स में अहोम डायनेस्टी था. So this is the boundary of Ahom dynasty at its peak. So in this region there was Ahom dynasty. So at that point in time there was kingdom of Manipur also, there was kingdom of Jayantia also, then there was Kachheri kingdom also. So ये सब contemporary kingdoms हैं, and at that point of time Ahom dynasty ये था. Ahom dynasty का time period it is from 1228 to 1826. So basically if you see the people of Ahom dynasty, they are not native to India, they have migrated to India, right? So most probably they have migrated from the South China or they have migrated from the Myanmar region. Not much clarity is about there, but they have migrated to this region. And migrate करने के बाद from in 1228 they have set up this Ahom dynasty, right? तो Ahom dynasty का foundation होता है 1228 में in the Brahmaputra valley. You know that the Brahmaputra river flows through the Assam region. So Brahmaputra valley में, and it was done by the Sukpa. It was done by the Sukpa, right? And उनको बुलाया जाता था चावलुंग, चावलुंग भी बुलाया जाता था. तो the person was called as the चावलुंग शुक्पा. चावलुंग ऐसे होता है जो बहुत अच्छा लीडरशिप होता है, उसको ताई स्पीकिंग पीपल थे ये, तो ताई लैंग्वेज में बोला जाता है चावलुंग. सो द टाइटल दैट वाज गिवन वाज द चावलुंग शुक्पा. द नेम बिकेम, एंड दैट वाज गिवन बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शनल लीडरशिप. नहीं तो आप खुद ही सोचिए कि दूसरी जगह से माइग्रेट करके आए और यहाँ पर एक डायनेस्टी खड़ा कर दिया, तो कितनी अच्छी लीडरशिप रही होगी अहोम डायनेस्टी की, राइट? So regarding Ahom's religion and the society, so initially Ahom used to follow the traditional tribal gods, but later on with the influence of Indian culture, Brahmanas, Hinduism, so this kinds of influence happened in the Ahom dynasty. और वहाँ पर बाद में ब्राह्मणा कल्चर को फॉलो करने लगे, हिंदुइज्म को भी फॉलो करने लगे. तो ये ट्राइबल गॉड्स को जब फॉलो करते थे तो उनका अपना रिचुअल्स होता था, उसके कारण ही ये मॉइदम्स बनाते थे. हर एक धर्म के अंदर अलग अलग होता है प्रोसेस कि वो डेथ के बाद उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे. कभी वहाँ किसी में जलाया जाता है, किसी में लाइक दफनाया जाता है, तो ये लोग मॉइदम बनाते थे, राइट? सो दिस कंटिन्यूड फॉर 600 years. अब होता ये है कि अहोम डायनेस्टी इधर साइड म्यांमार है ना, दिस एरिया इज म्यांमार. सो म्यांमार साइड से अटैक होता है ऑन द अहोम डायनेस्टी, राइट? सो देयरफॉर अब अहोम डायनेस्टी को चाहिए था क्या? हेल्प. सो अहोम डायनेस्टी वांटेड द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स. तो ब्रिटिशर्स सेड दैट ओके वी विल हेल्प यू. अहोम को लगा कि ठीक है ब्रिटिशर्स हेल्प करेंगे और म्यांमार पीपल को जो है वो हरा के वापस ब्रिटिशर्स अपना चले जाएंगे, क्योंकि मुगल ये ब्रिटिशर्स का एम्पायर जो है वो इधर साइड था, राइट? सो दैट वाज द मेन मोटिव. लेकिन जब ब्रिटिशर्स लड़ाई करते हैं बर्मा के साथ, सो व्हाट हैपेंस? फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर हैपेंस. First Anglo-Burma war happens from 1824 to 1826, and in this the British East India Company as well as the Burmese soldiers, so they were fighting together. इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है. अब यहाँ से एक्सपेक्टेड था, अहोम डायनेस्टी को ये एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो वापस चले जाएंगे, क्योंकि वो जीत चुके हैं, है ना, कुछ थोड़ा बहुत धन दौलत लेके वो वापस चले जाएंगे. बट यू नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग 1826 द ब्रिटिशर्स हैज एनेक्सेशन पॉलिसीज अक्रॉस द इंडिया. दे हैव बीन डूइंग दिस काइंड्स ऑफ एनेक्सेशन पॉलिसीज. तो इन्होंने अहोम डायनेस्टी को भी नहीं छोड़ा, एंड देयरफॉर आफ्टर द 600 years ऑफ अहोम डायनेस्टी ब्रिटिशर्स का पूरा कब्जा हो जाता है इन दिस पर्टिकुलर रीजन जहां पर अहोम किंगडम था. एंड दैट हैपेंड थ्रू द ट्रीटी ऑफ यंदाबू. This, yes, you must be knowing that the Treaty of Yandabu was signed after the first Anglo-Burmese war.
राइट। इस कारण से अब ये अहोम डायनेस्टी जो है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पर ब्रिटिशर्स इसको एनेक्स कर लेते हैं, सारा एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ कंट्रोल आ जाता है ब्रिटिश अंपायर का। राइट, नाउ कमिंग टू द मोइदम्स, क्योंकि अहोम डायनेस्टी को आप लोग समझ गए। नाउ कमिंग टू द मोइदम्स, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है मोइदम्स, एंड दिस मोइदम इट इज अ हेमिस्फेरिकल ब्यूरियल मोंड्स। सो आपको दिख सकता है कि दिस इज अ हेमिस्फेरिकल ब्यूरियल मोंड्स एंड इट विल वेरी इन साइज। देखो कि जो अगर कोई बहुत बड़े राजा का होगा तो ये बहुत ऊंचा होगा, बहुत बड़ा सा ब्यूरियल बनाया जाएगा, है ना। लेकिन वहीं पे अगर छोटे से सोल्जर का होगा तो छोटा सा बनाया जाएगा, राइट। सो दिस ब्यूरियल मोंड्स इज बीइंग बिल्ट एंड दैट इज बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ द डिसीज्ड। जिस पर्सन का डेथ हुआ है उसका कितना बड़ा स्टेटस है, अगर वो क्वीन का है तो बड़ा सा मोर्डम बनाया जाएगा, राइट। अब ये जो बनाया जाता है, so under this there is a chamber, this kind of chamber is there, so there is a chamber, then earthen mold with bricks are there, ठीक है। ये मोल्ड बनाया जाता है ब्रिक्स का यूज करके, and there is an octagonal boundary wall which an arch gateway to the west। so अब ये जरूरी नहीं है कि सारे मोइदम्स में सेम ही फीचर्स हो, सेम ही ऑक्टागोनल बाउंड्रीज ही हो, अलग अलग मोइदम्स में अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन्स हु हैव बीन डिसीज्ड। तो ये अलग अलग फीचर्स हो सकता है, बट इन जनरल होता है कि अंदर से मोइदम इस तरह का दिख रहा होता है, बट बाहर से इस तरह का दिख रहा होता है, राइट। सो दैट इज मोइदम। इट इज बीइंग बिल्ट इन द इट इज सिचुएटेड इन द फुटहिल्स ऑफ द पटकाई रेंजेस इन द ईस्टर्न असम। So Patkai ranges, you know that this is the northeastern region, and यहाँ पर क्या है, hills हैं, like Patkai Boom is there, Patkai Boom, Naga Hills, Mizo Hills, है ना, गारो खासी जयंतिया, you already know, so these are the hills। तो इस पटकाई वाले रीजन में, पटकाई बूम वाले रीजन में जो असम से लगता था, तो उस रीजन में ये बनाया जाता है, ये मोइदम बनाया जाता है, राइट। देन मोइदम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द होम फॉर स्पिरिट, है ना, क्योंकि डेथ होने के बाद क्या हो गया, वो स्पिरिट हो गए, तो वहां पर उनको दफनाया गया है या वहां पर उनकी क्रिमेटेरियम किया गया है। सो दैट इज कॉल्ड एज द होम फॉर द स्पिरिट। नाउ इनिशियली द मोइदम वाज मेड यूजिंग द नेचुरल एलिमेंट्स लाइक द हिल्स, तो जो हिल का शेप था उसी को थोड़ा बहुत कट करके बना दिया, फॉरेस्ट का यूज करके, वाटर का यूज करके इट वर क्रिएटेड, but later on it was also built using the wood, and बाद में तो स्टोन और बर्न्ड ब्रिक से भी बनाया जाने लगा था मोइदम। इसीलिए आप यहाँ पर देखोगे ये ब्रिक वाला स्ट्रक्चर है, तो ये बर्न्ड ब्रिक से बनाया हुआ ये वाला मोइदम है, ठीक है। तो अब इस फिगर को, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है, राइट। सो देयरफॉर इट हैज नाउ बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये 46 सेशंस के अंदर ये चीज इंक्लूड हुए, राइट। सो यही सारा मोइदम है, मोइदम के बारे में आपको पता चल गया होगा। नाउ रिगार्डिंग द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इस साल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो यू कैन सी दैट देयर आर 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन विच देयर आर 35 कल्चरल, जितने भी रेड से मार्क्ड हैं, जैसे जयपुर सिटी हो या बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची हो या अजंता केव्स हो, एलोरा केव्स हो, तो ये सब सारे जो है वो कल्चरल हेरिटेज साइट्स है। देन देयर आर 7 नेचुरल हेरिटेज साइट्स, दैट इज द वेस्टर्न घाट इज देयर, देन कैलेडियो नेशनल पार्क इज देयर, दैट इज इन द राजस्थान, देन ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज देयर, नंदा देवी एंड द वैली ऑफ फ्लावर इज देयर, काजीरंगा नेशनल पार्क इज देयर, देन सुंदरबन नेशनल पार्क इज देयर, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज देयर, राइट। So these are the natural heritage. Similarly, there are one mixed types, that is the Kanchenjunga National Park, which is there in the Sikkim region. तो ये तो 7 ऐसे हो गए नेचुरल हेरिटेज वाले, देन 1 हो गया मिक्स्ड वाला, एंड 35 others are there, that is the cultural type। तो इसको आप जरूर देखे के जाएंगे in UPSC Prelims 2025। Also see which has been the first set of the natural heritage sites included in our country, which has been the first set of the cultural heritage sites included in our country। then कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा नेचुरल हेरिटेज, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो ये सब चीजें जो हैं वो आप ध्यान में रखेंगे, बिकॉज इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 ऑल दिस काइंड्स ऑफ, नॉट नेसेसरली कि वो सिर्फ मोइदम के बारे में पूछे, है ना। मोइदम के बारे में हो सकता है कि क्वेश्चन पूछे वो उसमें एक स्टेटमेंट हो, अदर 2 स्टेटमेंट या अदर एक स्टेटमेंट
हो सकता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में पूछ लें, यूपीएससी का जो वर्ल्ड हेरिटेज, जो इंडिया के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उसके बारे में पूछ लें. सो यू शुड बी नोइंग दिस इन डिटेल्स, राइट. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस कि अभी मोइदम अहोम डायनेस्टी वाला इसको इंक्लूड कर लिया गया है, राइट. So that was regarding this topic. So we have already covered all these kinds of topics in our current age program. That is a very comprehensive program. ये जो मैं मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स बता रहा हूँ वो सिर्फ वही बता रहा हूँ यहाँ पर जो मुझे लगता है कि जो ज्यादा से ज्यादा ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में अपियर हो सकते हैं, राइट. बट यू हैव टू कवर द इंटायर सिलेबस. Yeah, if you have to cover comprehensively the 1.5 years of the current affairs, then do check out this current aids program, which is a 1-point solution for the current affairs. Why it is called as the 1-point solution? Because we are also going to provide you the booklets that will be the compilation of the 1.5 years of the current affairs. In these kinds of booklets, the articles will be from the newspapers like the Hindu, Indian Express, Press Information Bureau, and other kinds of journals also. Important journals like the Dawn to Earth or Science Reporter. So that will be there. Along with that, based on this, there will be tests as well that will be conducted in the workbook sessions. So there will be 13 workbook sessions in this, and there are case debate sessions also, because some of you are more interested in yearly compilation. So 8 modules will be there, that is polity, governance, economy, geography, environment, science, technology, IR, society, government schemes. In this there are 8 modules, and in for all the 8 modules there will be 2 to 3 classes depending upon the nature of the subjects, the vastness of the subjects, and there will be sectional test as well on those 8 modules. Then finally there will be 2 full length tests. So in general there will be 13 workbooks, 13 workbook sessions, 8 snippet sessions, 8 sectional tests and 2 full length tests. ठीक है, तो this is more than sufficient to attempt like 40 to 45 questions in the UPSC prelims 2025. Because इस topics, ये सारे topic selection इस तरह से किया गया है ताकि comprehensive cover हो पाए. Obviously in the UPSC prelims 2025 questions directly come from the current affairs, but rest of the 2025 questions that will be taken from the current affairs, but a static portion will be asked from there. So holistic comprehensive coverage will be there inside this module. So if you are interested, you can check out the Kalam IAS websites or the Telegram channel. So that is all from my side. In